যেখানে চলে দরজাটা বন্ধ করে দে। One moment. Hello everyone. Hello everyone. A very good afternoon. My name is Indranil Chatterjee and I am your moderator for this session. Ideas Unlimited Sports Management Group is back with another webinar as the lockdown keeps on increasing. Ideas Unlimited Sports Management Group, or IUSM, is a leading India-based ISO 9001-2015 sports management company. Since its inception in 2007, we are working and contributing immensely for the development of the sports scenario within the country. Also, if you want to watch any of our webinars from our previous series, or if you want to watch this webinar, you may go to Pink TV India on YouTube and subscribe and watch our videos. So without further ado, let us start today's webinar. We have with us renowned sports psychologist and toughness trainer, Dr. Mrinal Chakraborty. Thank you so much, sir. Thank you for accepting our invitation and agreeing to share your valuable knowledge with us. Thanks for being a part of this. Sir, your audio is muted. If you could kindly switch on your audio. Just click on the screen, you will, yeah. Yeah. Thank you everyone. Thank you for inviting me. I'm feeling great pleasure to meet you all. Thank you. So, sir, before we delve into the questions that we have prepared for you, since this is the first time that a lot of people might be hearing to you, maybe getting a chance to listen to you. So, if you could please tell us about your inspiring journey thus far, and then we can go on to the different questions that we have. It's a long journey, So long story short, previously I was a hockey player. I'm the product of Kolkata Sai. 1989 to 93, I was in Calcutta Sai. And after that, I got opportunity to join Indian Railway. So I worked for Indian Railway for 3 years, and then I left the job. I got offer from Calcutta Port Trust. So I work over there for 18 years. So when I'm working at Calcutta Port Trust as a hockey player, मतलब मेरा ligament में injury आया था. So I got injured in my ligament. And that day is my transformation day, you can say like this, because I met one spiritual guru, and that guru asked me that moment, what is the purpose of your life? So मैंने injury का पहले, whenever I meet someone, I used to tell me that I want to become an India player, I want to become a national player, I want to wear the Indian jersey with the Indian flag. But due to the injury, I don't know what will be my next step. So I little bit confused, and still I have a dream that I want to perform for my country. So I replied that I want to play for my country. So that spiritual guru asked me that, do you believe that is it possible right now also, because you are injured and look at your leg? So I become confused. Then the gentleman asked me a simple question, and that question make me, in a different way, different thought pattern, that do you know what you don't know? So I become confused. What is the meaning of this question? What does it mean? So then again I look like I don't understand. Then that gentleman asked me in Hindi, क्या तुम्हें पता है, तुम्हें क्या पता नहीं है? Then I become more confused. As my mother tongue is Bengali, then he asked me in Bengali, तुम्हें की जानो ना? So after confusion of few minutes, I realized that I don't know anything. So I replied, no, I don't know what I don't know. Then that spiritual guru asked me that I know what you don't know, but would you like to know what you don't know? I say, yes, I want to know. Then he told me, what you know is just a drop of water. मतलब तुम्हें जो पता है वो एक पानी का बूंद जैसा है. And what you don't know is like an ocean. मतलब तुम्हें जो पता नहीं है वो समुद्र जैसा है. Now choice is yours, where you want to stay. You want to stay in the zone, comfort zone, what you know, or you want to explore that what you don't know. So I remember that day I immediately replied, yes, I want to know what I don't know. And that is that first day I realized that what is the meaning of life. And that gentleman told me, I will share with you a unique word, and always remember this word. In Bengali, he told me, Je boje she khoje, je khoje she paye. In Hindi, I can say, जो समझता है वही ढूंढता है, जो ढूंढता है उसी को मिलता है. So like if you search for something with a full potential, then automatically you will get what you want. Then I went to Cambridge for my higher study, and I did my research over there. How a performer become a peak performer, how poor performer become a peak performer with the help of emotional quotient and spiritual quotient. And if anyone use his or her emotional quotient and spiritual quotient together,
then they become like a champion in every field, not only in sports field, in every field that person become a unique. And then after coming back, I joined with Indian women's football team. And women's football team won the junior, junior not, it's a senior SAF games in Sri Lanka. They won the Sri Lanka. And after that, I joined with Indian table tennis. And then continuously, I joined with so many different teams. And my best achievement so far, 2016, we won the Junior World Cup after 16 years. And where I apply first time in India, NLP. It's a mind programming process. It's called neuro linguistic programming, and it's a very popular today's world. As we all know the name of Messi, as we all know the name of Usain Bolt, Magnus Carlsen, Michael Phelps, everybody using this skill. That's called NLP. It's about the mind programming skill, that how you reprogram your mindset so that you can perform in a better way. So this is my short journey. As I told you, it's a big story, but I make it short. Just for, and now right now I'm working with 12 different Indian team, and in that this year Olympic होने वाला था, जो next year के लिए schedule किया है, जब जो होने वाला है, उस Olympic में already मेरा 10 स्टूडेंट क्वालिफाई कर चुका है और एक इंडियन हॉकी टीम भी क्वालिफाई कर चुके हैं. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. तो मेरा जो बेस है, मेरे स्टूडेंट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स फील्ड एज वेल एज फ्रॉम द कॉर्पोरेट फील्ड आल्सो, दे कम फॉर देयर मेंटल, अपग्रेड देयर मेंटल हेल्थ. दिस इज माय स्टोरी. सर सच कहूं तो मैंने तो पूरा क्वेश्चंस का लिस्ट सजा के रखा था आपके लिए कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, लेकिन आपके पहले इंट्रोडक्शन से ही मैं मतलब अभी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन पहले पूछूं कौन सा बाद में पूछूं, और नया भी कुछ क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है. तो जो भी हो वो सब में ना जाके मैं आपको पहली बात जो पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बारे में बात कर रहे हैं, पर्सनल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, आपके मैक्सिमम फोटोज में आपको देखा जाता है ये लाल टोपी पहने हुए. इसकी स्टोरी क्या है? ये स्टोरी हमारे दर्शकों को लिए जरा आप बताइए. जरूर. लाइक प्रीवियसली व्हेन आई वर्क फॉर इंडियन रेलवेज, आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर paramilitary force. So I was over there for 2.5 years. So when I'm in paramilitary force, every time we have to wear this type of cap. And when I asked to my senior why we have to wear the cap, Mullah, this is the signal that you are from army background. And if once an army, lifetime you are an army. So your mentality should be like an army man. So I first time realized that wearing this cap, I start feeling that my army feelings start working. And if I am working for my country, that army is the only people, those who are facing, those who are saving our country. तो वो आर्मी फीलिंग्स को बरकरार रखने के लिए मैं जहां भी जाता हूँ, जब भी मौका मिलता है, आई वेयर, बिकॉज राइट नाउ आई एम अटैच्ड विद एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एज वेल एज असम राइफल्स, और बहुत सारे कमांडो टीम का साथ मैं कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मेरा काम है कमांडोज लोगों का माइंडसेट को अपग्रेड करना. How to become more tough, how to face the situations, how to overcome the tough time. तो इसीलिए उससे जो मेरा लर्निंग वो मेरा फर्स्ट जॉब था, to respect that job, to respect the country, to respect the army people. I always wear this cap. This is the secret, Well, thank you so much for that, sir. We all are very proud of our Indian Army. हम सब बहुत गर्व महसूस करते हैं हमारे आर्मी के काम से. सर, अब आपके पर्सनल लाइफ से थोड़ा टेक्निकलिटीज में जाते हैं. जैसा कि आपने कुछ देर पहले उल्लेख किया एनएलपी के बारे में, तो इफ यू कुड टेल आवर व्यूअर्स दैट व्हाट डज एनएलपी मीन, एंड लाइक इफ यू कुड एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट इन डिटेल फॉर पीपल हु डोंट नो. एनएलपी ये जो वर्ड है, इसका एब्रिविएशन अगर देखा जाए, एन रिप्रेजेंट न्यूरो. तो ये जो हम लोग सोचते हैं, ये जो न्यूरॉन्स है, इसका जो डेंड्राइट्स, हम लोगों का अंदर में जो भी सोच आते हैं, वो न्यूरॉन्स उस सोच को बॉडी का अंदर वो कम्युनिकेट करते हैं. हम लोग कैसे सोचते हैं, वो सोचने का जो तरीका होता है, उसी तरीका में थोड़ा बहुत अपग्रेड जब करते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, आप कोई भी मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल में बहुत सारा ऐप होता है. जब वो कनेक्ट नॉर्मली आता है, और वही मोबाइल का ऐप, सबसे बड़ी बात जो है, हम लोग जब खरीदते हैं, इमीडिएटली प्ले स्टोर में जाके कुछ ना कुछ हम लोग डाउनलोड करते हैं. उसका पीछे रीजन क्या है? टू अपग्रेड द मोबाइल. और जो सॉफ्टवेयर हम लोग अपलोड मतलब डाउनलोड करते हैं, जो अगर अच्छा सॉफ्टवेयर है, हम लोग हर वीक में उसको अपडेट करते हैं.
और इन द मीन टाइम अगर कोई सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं लगता या जरूरत नहीं होता, हम लोग उसको डिलीट भी कर देते हैं, राइट। तो लाइफ में क्या होता है, कोई भी हैबिट लेके कोई जन्म नहीं लेता। जो भी हैबिट है वो हैबिट हम लोग इंस्टॉल करते हैं, कभी कॉन्शियसली कभी अनकॉन्शियसली। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को स्विमिंग करना है, हम लोग को वो हैबिट बनाना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे बचपन से क्रिकेट प्लेयर बनना है तो उसको हैबिट में लाना पड़ेगा। बचपन में फुटबॉल प्लेयर बनना है, वी हैव टू गो टू द फुटबॉल ग्राउंड। तो कोई भी हैबिट लेके हम लोग जन्म नहीं लेते, वो हैबिट को इंस्टॉल करते हैं। अगर मोबाइल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, अगर डिलीट भी होता है, वैसे ही कुछ हैबिट है जो गलत हैबिट हो जाता है, तो गलत हैबिट को डिलीट भी करना पड़ता है। तो यही है एनएलपी इज ऑल अबाउट। में सिंप्लीफाई में बताना चाहूंगा, एनएलपी है नॉर्मली एक आदमी जैसे सोचते हैं, उसका सोचने का पैटर्न को रीपैटर्न करना है। से फॉर एग्जांपल एक आदमी नॉर्मली क्या सोच रहा है, ये जो लॉकडाउन पीरियड है, ये जो कोविड-19 की वजह से हम लोग सब एक घर में बंद हुए हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन, स्पोर्ट्समैन लोग हर दिन यही सोच रहा है कि ये वेस्टिंग टाइम है, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ये लाइफ का सबसे बुरा वक्त है, इसी टाइम से कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, खराब ही खराब होगा। लेकिन मेरा मैसेज है, आई वांट टू शेयर विथ यू सम यूनिक आइडियाज। मैं सब पे ये आइडिया इसलिए बोला हूं कि ये मैजिक की तरह काम करता है। इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज एनएलपी। तो ये क्या लिखा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर एम लिखा है, एम दिखाई दे रहा है। तो ये जो टाइम है, ये लॉकडाउन पीरियड का जो टाइम है, किसी किसी के लिए ये एम का मतलब है मिरेकल टाइम एंड मैजिकल टाइम। व्हाई दिस इज मिरेकल टाइम एंड मैजिकल टाइम? मतलब है जैसे आप समुद्र में देखिए, जो लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, फिशरमैन, जिस दिन मछली पकड़ने के लिए नहीं जाते हैं उन लोग घर में रहते हैं, लेकिन घर में रह के क्या करते हैं, उसका जो नेट है उसको रिपेयर करते हैं। क्यों रिपेयर करते हैं? क्योंकि नेक्स्ट दिन उसको फिर मछली पकड़ना है। मतलब रिपेयर टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट, राइट। एक ये इसका वर्ड जो है हम लोग इससे ले लेते हैं, रिपेयर टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे। मतलब रिपेयर से प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। बोलने का मतलब है ये जो लॉकडाउन पीरियड है, ये भी हम लोग अगर ऐसे सोचेंगे, इट्स ए रिपेयर टाइम फॉर अस। वी शुड रिपेयर आवर ऑल द लूपहोल्स। सभी का अंदर स्ट्रेंथ है, सभी का अंदर वीकनेसेस है। अगर जो भी वीकनेसेस है उसको हम लोग एलिमिनेट करें और जो भी स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएं, इसका मतलब है थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद के अंदर क्या कमी है, खुद के अंदर क्या ज्यादा है, तब यही टाइम जाके उसका रिपेयरिंग टाइम में मिरेकल टाइम बन सकता है। क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, वो घर में बैठ के खाली सो नहीं रहा है, घर में बैठ के अच्छी आदत को और अच्छा बना रहा है। किसी के लिए ये मिरेकल टाइम नहीं है, ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, मैंने उल्टा कर दिया। उल्टा में क्या दिखाई दे रहा है? डब्लू डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। मतलब किसी के लिए ये टाइम वेस्ट है, ये वेस्टिंग टाइम है, क्योंकि उसको लगता है वो घर में बैठा है। इमेजिन कीजिए, ये लॉकडाउन उठने के बाद आप देखिएगा कहीं से थ्रू आउट द वर्ल्ड कोई फुटबॉल प्लेयर वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर होगा, कोई एथलीट वर्ल्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करेगा, कोई मतलब वन टीम जाके इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, क्योंकि वो लोग इसको मिरेकल टाइम बना के रखे। इसी टाइम से कोई आदमी ब्रेक डाउन हो रहा है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, बहुत सारे गलत चीज सोच में आ रहा है, क्योंकि वो वेस्टेज टाइम हो रहा है, क्योंकि वो ग्रोथ मोड में नहीं है, वो फिक्स्ड मोड में है। तो एनएलपी क्या है? एनएलपी एक आदमी का सोचने का जो तरीका है उसको अपडेट और अपग्रेड करने के लिए हेल्प करते हैं। इसीलिए एन फॉर न्यूरो, ए फॉर लिंग्विस्टिक। मतलब क्या आप मुंह से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसका बहुत असर पड़ता है हम लोगों को। से फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं। इमेजिन कीजिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इधर मत जाओ, लेकिन मैं यही वर्ड थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा या जोर से बोलता हूं, डोंट गो ओवर देयर। उसका जो मतलब होता है, थोड़ा सा प्यारा से बोलने से, उधर मत जाओ, उसका मतलब पूरा बदल जाता है। आप जरूर देखे होंगे, पान पसंद का एक एडवर्टाइज आता था बहुत पहले। उसमें दिखाता था एक लड़की, मतलब शादीशुदा लड़की, वो अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्ला के बोल रहा है, शादी और तुमसे कभी नहीं। अभी वही लड़की के मुंह में पान पसंद आ जाता है, वही लाइन कैसे बोलता है, शादी और तुमसे कभी नहीं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? लिंग्विस्टिक मतलब वर्ड का टोनालिटी बदल दिया, मीनिंग पूरा चेंज हो गया। जो वर्ड का गुस्सा वाला मीनिंग जो था, वही सॉफ्ट वाला मीनिंग बदल गया। तो ये जो लिंग्विस्टिक पार्ट है, ये है एनएल। और पी का मतलब प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग होता है, वही बात बोल रहा है। इसका एज ए होल किया जाए, एक आदमी का जो सोचने का पैटर्न है, एनएलपी अगर वो अप्लाई करेगा हर दिन में, उसका सोचने का पैटर्न ऐसा हो जाएगा।
मतलब नॉर्मल एक आदमी 2 और क्या सोचता है? अगर मैं आपको ही पूछता हूँ इंद्रनील, 2 और 2 कितना है, आप क्या बोलोगे? 2 और 2 सर 4 होते हैं। 4 होता है। लेकिन मैं अगर बोलूंगा 2 और 2 22 होता है, क्या आप गलत है या मैं गलत हूं? कोई गलत नहीं है। बोलने का मतलब है 2 और 2 4। आपने क्यों बोला? क्योंकि आपने बचपन से सुना 2 और 2 का मतलब बीच में प्लस साइन है। और मैं क्यों बोला 2 और 2 22? इसका मतलब है मैंने तो डिफाइन नहीं किया 2 और 2 का बीच में क्या है। 2 और 2 पास में रखने से 22 भी हो सकता है। बोलने का मतलब है सोचने का पैटर्न, कैसे आप देखते हैं, कैसे आप सोचते हैं। आपका देखना और आपका सोचना टोटली डिफरेंट है। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं वो सोचते नहीं है, जो हम लोग सोचते हैं वही देखते हैं। देयर इज ए टोटली डिफरेंट थिंग। मतलब ब्रेन में जो है आप बाहर में वही देखते हैं, बाहर में जो है आप ब्रेन में वो नहीं देखते हैं। इसीलिए एक ही मूवी में 10 आदमी बैठता है एक हॉल में, और 10 आदमी को डिफरेंट मूवी का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन मिलता है। इसीलिए जब मूवी निकलते हैं तो कोई बोलता है मूवी का वो पार्ट अच्छा था। आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, 4 दोस्त कभी एक साथ जाता है, मूवी खत्म होता है, अब सबका हाथ में एक क्वेश्चन दे दीजिए कि मूवी का बेस्ट पार्ट कौन सा है। अब देखिएगा चारों का आंसर डिफरेंट होगा। अब बोलिए मूवी का एकदम वर्स्ट पार्ट कौन सा है, देखिए आंसर डिफरेंट होगा, क्योंकि सब डिफरेंट है। एंड अब हम लोग जैसे सब डिफरेंट है, हम लोगों का सोचने का पैरामीटर भी डिफरेंस है। एनएलपी उसी में हेल्प करता है कि आप कैसे और अपग्रेड वे में सोचोगे। और कुछ? हाँ, मैं भी एनएलपी के बारे में इतना नहीं जानता था। आपके माध्यम से मुझे जानने का आज मौका मिला, एंड आई एम श्योर दैट even our viewers who are learning this, they will try to apply NLP in their professional lives to make it even better. So moving on, talking about achievements, तो आपके अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे अचीवमेंट्स, आपने बहुत ही कम समय में बहुत सारे अचीवमेंट्स कर लिए हैं। लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा कि इंडियन जूनियर हॉकी टीम का जो 2016 का जो वर्ल्ड कप जीतना था, वो आपका अब तक का सबसे बड़ा आपका अचीवमेंट है। तो उस अचीवमेंट के बारे में अगर आप थोड़ा हम लोगों को बता पाए, और इस विस्तार से कि जैसे आप ग्रुप स्टेज से नॉकआउट स्टेज से सेमीफाइनल, सेमीफाइनल से फाइनल, तो कैसे आप अपने आप को, अपने प्लेयर्स को, उनके मानसिक रूप को बदल रहे थे कि वो कोप कर सके सिचुएशन के साथ। राइट। एनएलपी का बारे में बताने का बाद मैं आपको और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एनएलपी का जो क्रिएटर है उनका एक नाम है डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर, और एक का नाम है डॉक्टर जॉन ग्रीन। एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर इज माय गुरु। तो मैं लास्ट 15 साल से उनका पास हूँ एज ए स्टूडेंट। मैं हर साल लंदन एंड यूएस जाता हूँ उनका पास सीखने के लिए कि एक्चुअल एनएलपी कैसे अपग्रेड करते हैं, क्योंकि वो माइकल फिलिप्स का भी गुरु है, डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर। और सबसे बड़ी बात है उशियन बोल भी उनका साथ कम्युनिकेट करते हैं, रॉजर फेडरर उनका साथ कम्युनिकेट करते हैं, सेरेना विलियम्स कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसे एक चैंपियन जैसे पीपल जिनका एज आज की डेट में 85 है, मुझे मौका मिलता है कि उनसे रोज, अभी भी मुझे रोज उनसे इंफॉर्मेशन मिलता है कि कैसे गो करना है। अभी अगर हॉकी का बात करें, मैं आपको हॉकी में आना चाहूंगा। फर्स्ट टाइम हॉकी में आने से पहले मैं बताऊंगा उसका पीछे एक रीजन था। हॉकी में आने से पहले, इसका पहले हॉकी ने कोई मोटिवेशनल या मेंटल टफनेस या साइकोलॉजिस्ट ऐसे कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हॉकी में जो वर्ल्ड वाइड जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है, ग्राउंड में जाओ, टेक्निकली स्किल्ड हो, अच्छा प्रैक्टिस करो, ज्यादा खाना खाओ, इंडिया टीम जीत जाए। लेकिन फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कोच एवर आई फाउंड दैट डॉक्टर हरिंदर सिंह, जो आज की हॉकी की टीम में पहले कभी कोच थे। हम और हरिंदर सिंह एक साथ थी। तो हरिंदर सिंह को जब अपॉर्चुनिटी मिला है जूनियर वर्ल्ड कप टीम के साथ काम करने का, हरिंदर सिंह फर्स्ट मिनिस्ट्री को बोला कि आई वांट स्पेसिफिक एक मेंटल टफनेस कोच, और वो मेंटल टफनेस कोच बिना मैं ये टीम को वर्ल्ड कप में जीत नहीं सकता हूँ। गारंटी दे सकता हूँ कि मेरा साइंस टीम, साइंस ग्रुप अगर ठीक रहेगा, स्पोर्ट्स साइंस, तो ये ओलंपिक मेडल मतलब वर्ल्ड कप मेडल बाई प्रोडक्ट आएगा। तो उनका बाद मिनिस्ट्री ने वो सैंक्शन किया, और डॉक्टर हरिंदर सिंह मेरा साथ कम्युनिकेट किया। और फिर मुझे दिल्ली बुलाया गया, मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से लेके, आरडी से लेके, उस टाइम जो इंडियन सीनियर हॉकी टीम का कोच थे ओल्डमैन, लेके सभी के साथ मैंने बैठा। मैं अपना प्लान दिया कि कैसे कैसे काम होगा। सबसे मुझे अच्छा लगा, आज तक कोई भी स्पोर्ट्स टीम ने जो मौका नहीं दिया, उन लोग बोला वी वांट मेडल, यू आर फ्री बर्ड, आप कुछ भी करो, हम लोग को मेडल चाहिए। तो ये जो मुझे फ्रीडम मिला था, उसी चलते मेरा काम करने का बहुत अच्छा एक आइडिया मैंने अप्लाई किया। फर्स्ट मैं
जो क्लास लिया था वो लिया था सिलारू में। सिलारू इंडिया का हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है, फर्स्ट मतलब ऐसा ट्रेनिंग सेंटर थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऐसे 2-3 जगह पे है। और ये जो सिलारू जगह है ये शिमला से 70 किलोमीटर आउटकट्स में है, एक पहाड़ी में है। तो फर्स्ट डे मैंने जब गया तब जाके मैंने देखा सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि इंडिया में पूरा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से 2 प्लेयर 3 प्लेयर 1 प्लेयर ऐसे करके आया। तो मैंने जब बात किया मैंने देखा दे आर ऑल गुड बट दे आर टोटली सेपरेटेड। टीम का अंदर जो यूनिटी बॉन्डिंग था वो तब तक नहीं हो पाया था। तो मैंने फर्स्ट टीम का मतलब क्या है, टीम कैसे काम करता है उसके ऊपर मैंने ध्यान दिया। फिर मैंने इंडिविजुअली काउंसलिंग स्टार्ट किया, जो मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि नियर अबाउट 30 प्लेयर था और 30 प्लेयर से वीकली मिनिमम 2 बार बैठना है। अगर आप कैलकुलेट करके देखिएगा मेरा 4 घंटे से भी सोने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि हर दिन ही कोई ना कोई मेरा रूम में रहता था और किसी किसी का पर्सनल चैलेंजेस है वो भी मुझे शेयर करता था। तो ऐसे करके हम लोग वहां पे 3 महीने थे। 3 महीने में मुझे लर्निंग मिला। उसका बाद कैंप शिफ्ट हो गया है दिल्ली, उसका बाद बैंगलोर, और बैंगलोर में असली स्टार्ट हुआ। और तब जाके मैं टीम का हर प्लेयर का साथ 1:1 बैठ के उन लोगों का जो ब्लॉकेज था, सभी का माइंड में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज था। किसी का गुस्सा का ब्लॉकेज था, किसी का घर में कुछ चैलेंजेस था, किसी का फैमिली प्रॉब्लम था, किसी का मनी का प्रॉब्लम था। वो सब चैलेंज को आइडेंटिफाई करके एनएलपी मैंने अप्लाई किया और मैंने टीम को एक चीज दिखाया था, आई वुड लाइक टू शो यू। ये मैजिक की तरह काम हुआ था। ये अगर आप देखते हैं, ये ऑक्सीलेशन थ्योरी जो है साइंस में उसको ऊपर बेस्ड है, लेकिन फिर भी मैं ऑक्सीलेशन थ्योरी समझाने के लिए ये नहीं दिखाता हूं। मैं एक सिंपल ये दिखा के मैं पूछता हूं प्लेयर लोगों को मैं क्या दिखा रहा हूं, तो उन लोगों को जब ऐसे करता हूं, अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है। हाँ सर। तो मैं जब स्टूडेंट लोगों को पूछता हूं आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट एनालिसिस देते हैं। लेकिन मैंने जब पूरा टीम से पूछा कि टीम को बोला एक साथ पूछो, तब उन्होंने रिप्लाई दिया कि जैसे आप मेहनत करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मेहनत का मतलब फिजिकल नहीं है, वहां पे फिजिकल रहेगा, मेंटल रहेगा, इमोशनल रहेगा, टेक्निकल रहेगा। ये चारों चीज अगर ठीक से आप करेंगे तो आपका इनपुट जैसे रहेगा आउटपुट वैसे ही होगा। अगर इनपुट ज्यादा होगा आउटपुट भी ज्यादा होगा, अगर इनपुट कम होगा तो आउटपुट भी कम होगा। तो ये सिंपल सिंपल मैंने चीज दिखाया और प्लेयर लोग इमीडिएटली कनेक्ट हो गया। और मेरा आप बोल सकते हैं स्पेशलिटी या यूनिकनेस जैसे बोल सकते हैं, वो है मेरा ट्रांस मतलब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन प्रोसेस। इसका मतलब है मैं किसी को भी उसका पुराना हुआ मानसिक दर्द जो है उसको मैं हटा सकता हूँ। एनी टाइप ऑफ मेंटल एगोनी, मेंटल पेन, वो बचपन में हुआ फोबिया है उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। जैसे कागज से रबड़ देके हम लोग डिलीट करते हैं कुछ पेंसिल से लिखा हुआ, वैसे ही माइंड में पुराना वाला कुछ घटना अगर उसका मन में स्टक है या किसी से हार चुका है। से फॉर एग्जांपल इंडिया ने जर्मनी के साथ एक बार मैच था और वही टीम में 5 प्लेयर था जो जर्मनी के साथ 5 गोल से हारा था। तो मैं जब बात कर रहा था तो बोला जर्मनी के साथ मैच है सर, यही टीम का हम लोग 5 गोल से हारे थे। मतलब खेलने से पहले वो हारने का चीज आ रहा था। तो इससे इसको निकालने के लिए प्रोसीजर होता है जो इंडियन स्पोर्ट्स में मैं जब स्टार्ट किया उसका बाद से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। उसका नाम है विजुअलाइजेशन प्रोसेस, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन प्रोसेस, जिसको मैं बोलता हूँ ट्रांस का मतलब है आप एक मेंटल स्टेट में रहोगे जहां पे आप फिजिकली कहां पे रहोगे, मेंटल कहां पे रहोगे तो डिफरेंट होगा। मतलब फिजिकली यू आर इन द ग्राउंड बट मेंटली यू आर समवेयर एल्स। तो वैसे करके मैं उनका माइंड में, इसको हिप्नोसिस भी बोला जाता है, हिप्नोसिस इन ए पॉजिटिव वे। मैं उसका माइंड में पॉजिटिव चीज डाल के नेगेटिव चीज निकाल लेता था। तो ऐसे हर प्लेयर का नेगेटिव चीज मुझे पता था और उस नेगेटिव चीज को वो म्यूजिक लगा के आंख बंद करके उन लोगों का हीलिंग होता था। मन का अंदर हाईजैक बोल सकते हैं, चोरी होता है ना, डकैती होता है, ये मन का अंदर डकैती होता है। वो सो रहा है, हाफ स्लीप में है, मैं उसका मन में चला जाता हूँ जो साइंस फिक्शन मूवी में दिखाता है, और जाके उसका मन में जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उसको मैं निकाल के वहां पे पॉजिटिव पॉइंट डाल के आ जाता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल आप और मेरा घर में एक स्पेसिफिक जगह पे इमेजिन कीजिए एक जूता रखा हुआ है और कोई घर में आके वो पुराना वाला जूता लेके नया वाला जूता रख देता है। तो हम लोग सुबह उठ के जितना भी ढूंढेंगे वो पुराना जूता तो नहीं मिलेगा। तो वही पुराना आदत को हटा देके नया अच्छी आदत को इंस्टॉल करना, मतलब मोबाइल में सोते हुए कोई आदमी का सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करके नया एक अच्छा वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें इतना अच्छा होता है, प्लेयर लोग बोलते हैं सर आपको कैसे पता लग जाता है मेरा क्या
कमी है और वही कमी को आप डिलीट कर देते हो, तो ये मैजिक की तरह काम की। इसीलिए कोई कोई बोलते हैं सर आपका मैजिक दिखाइए। तो इसीलिए मैं कभी कभी जो भी टीम के साथ काम करता हूँ वो में ले जाता हूँ, उनको वो स्टेट में लेके मेंटली उसको प्रोग्रामिंग करके फिर वापस आ जाता हूँ। इसको जो लोग व्यूअर्स हैं, अगर आप चाहें तो गूगल में सर्च करके देखिए, एक है टाइमलाइन थेरेपी। टाइमलाइन थेरेपी वेरी यूनिक थिंग। ये क्या है, कोई भी प्लेयर उसका मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स है, इस करने के लिए आपको थोड़ा ट्रेंड होना पड़ेगा, आम आदमी नहीं कर पाएगा। आई वुड लाइक टू रिकमेंड, अकेला मत करने जाइए, अगर आपको नहीं है कोई स्पेशलिस्ट का हेल्प लीजिए। और लगता है कि आपको कोई स्पेशलिस्ट इंडिया में नहीं मिल रहा, इफ यू वांट यू कैन कम्युनिकेट विथ मी आल्सो। लाइक कोई प्लेयर आज की डेट में 2020 में है, इमेजिन करते हैं वो ओलंपिक खेलने जाएगा 6 महीना 8 महीना 1 साल बाद, तो आज कई चीज से वो डर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको आंख बंद करा के उसका बचपन में ले जाता हूँ और बचपन के कुछ खुशी वाला मोमेंट को याद दिलाता हूँ और उसको एम्फेसाइज करता हूँ कि बचपन में वो कैसे खुशी था और उसका लाइफ में क्या क्या था। और मन का अंदर उसका हाथ में एक वर्चुअल टॉर्च दे देता हूँ, जो टॉर्च का नाम है डिलीट वाला लेजर बीम वाला टॉर्च। एक टॉर्च है, वो मन में सोचे देखते रहेगा, जो उसका हाथ में एक वर्चुअल टॉर्च मिला, और उसी टॉर्च से वो आदत, जिस आदत के लिए वो डर रहा है, उस आदत जिस दिन उसने इंस्टॉल किया था उसका ऐसे ऐसे घुमाएगा, वो डिलीट होते रहेगा। इट्स टोटली वर्चुअल, मन में उसको सोचना है और उसको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं गाइडेड वे में करता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, उसको जस्ट सो के रहना है और उसका मन से वो नेगेटिव डिलीट हो जाता है। और फिर जब वो वापस आता है, आप उसको पूरा दिखाई देता है कि वो नहीं है, वो ढूंढता है तब भी नहीं मिलेगा। इंडियन हॉकी में ये सीक्रेट थिंग मैंने अप्लाई किया था। आप लोग जानते हैं आज इंडियन टीम का गोलकीपर है श्रीजेश, और श्रीजेश छोड़ के और एक है कृष्णा पाठक, और कृष्णा उस टाइम जीना का टीम का सेकंड गोलकीपर था। विकास दाहिया फर्स्ट गोलकीपर और कृष्णा का सेकंड गोलकीपर। कृष्णा का पिताजी का एक बार देहांत हो गया, एक बार मतलब रियलिटी में ऐसा ही हुआ था, और पिताजी था नेपाल में और उसको जाना था लंदन खेलने के लिए, और उसी रात में मुझे मौका मिला कि उससे बात करने का, क्योंकि कोच ने बोला आप उससे बात करो क्योंकि उसका मेंटल स्टेट सही नहीं है, वो नेपाल जाएगा या लंदन जाएगा उसको अभी डिसाइड करना। तो जब उसको मैंने अंडरस्टैंड किया उसका मन में क्या चल रहा है, वो मन में चाहता है लंदन जाना, लेकिन इमोशंस बोल रहा है उसको नेपाल जाना। तो मैंने उस मन में दो पिक्चर, दोनों दरवाजा खोल दिया कि एक दरवाजे वो नेपाल की तरफ जा रहा है और नेपाल की तरफ जाने से उसका लाइफ इस तरफ जाने वाला है, और बगल में एक दरवाजा है जहां पे इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है और उससे उसका लाइफ कहां पे जाएगा। उसका बाद जब उसने आंख खोला, उसने खुद बोला कि मुझे पता है, मुझे पता लग गया मुझे क्या करना है, एंड आफ्टर दैट इट विल बिकम अ हिस्ट्री। वो जब से लंदन गया, लंदन का बाद से उसने सभी सेकंड गोल कीपर नहीं हुआ, और उसी की चलते इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीता था, क्योंकि फाइनल में भी उसने वो सेव किया था, बहुत सारे गोल सेव किया था। तो ये मैंने छोटा छोटा जो यूनिक टेक्निक्स है मैंने आपको बताया। ऐसे मेरा साथ दीपिका का भी काम किया मैंने आर्चरी में, ऐसे टेबल टेनिस में शरद कमल का साथ भी मैंने काम किया। ऐसे मेरा एक्सपीरियंस जो है, मेरा पास 35 एशियन गेम्स मेडल है, लास्ट 3 एशियन गेम्स, और 4 ओलंपिक मेडल है, 24 कॉमनवेल्थ मेडल है, मेरा जो स्टूडेंट्स है उसने अचीव किया। तो मैं जो भी है मैं एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, मेरा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हॉकी का है, और मैं मानता हूं कि अगर मैं हॉकी नहीं खेला होता, खाली किताब पढ़ के ये मोटिवेशन नहीं आ सकता। ये मेंटल टफनेस इज नॉट अबाउट बुक एंड थ्योरी, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और एनएलपी वही सिखाता है कि मेकअप और नॉलेज, मेकअप और नॉलेज अगर आप अप्लाई ना करते तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। दुकान से मेकअप खरीद के लाते हैं घर के लिए, अगर घर में बेटी है बीबी है वो मेकअप नहीं यूज करेगा, उस मेकअप का क्या वैल्यू है। तो नॉलेज भी वैसा ही है, अगर नॉलेज और मेकअप अप्लाई नहीं होगा उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे ही वहां पे अप्लाई हुआ था, उसका रिजल्ट मैजिक की तरह मिला है। चलिए, हम आशा करते हैं कि ऐसा ही मैजिक आप इंडिया के और भी बहुत सारे टीमों के लिए बहुत सारे टूर्नामेंट में करते रहे और हमारे देश के लड़के लड़कियां हमारे लिए मेडल लाते रहे। सर, अब एक वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर रहे थे हम, वहां से मैं चला जाता हूं पूरे एक दूसरे टॉपिक पे, जो कि है ग्रास रूट स्पोर्ट्स। अब जब हम मेंटल ट्रेनिंग की बात करते हैं, मेंटल टफनेस ट्रेनिंग की बात करते हैं या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने लाए थे उस टाइम पे, वो इंडिया में पहली बार आपने लाए थे। अब क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे सीनियर मैक्सिमम टीम्स में, मैक्सिमम जगह में आने लगे हैं या आ चुके हैं,
इसीलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ग्रास रूट स्पोर्ट्स में जूनियर लेवल से उसी तरह मेंटल टफनेस ट्रेनिंग या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की या फिर प्लेयर्स की इंडिविजुअल काउंसलिंग की जरूरत है? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं रियल एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं कोई एक इंटरनेशनल टीम टूर में था और इंडियन टीम में ही था। मैं टूर का नाम भी नहीं बताना चाहूंगा और प्लेयर का नाम भी नहीं, क्योंकि सबका अपना अपना रिस्पेक्ट होता। तो जो प्लेयर का बात बोल रहा हूँ वो बहुत सक्सेसफुल है। उसने बहुत सारे जगह पे मेडल भी मिला है, कॉमनवेल्थ पे मेडल मिला है, वर्ल्ड में कभी नंबर 1 भी थे। तो उसका साथ बात हो रहा था मेंटल ट्रेनिंग का। तो उसने मुझे बोला कि मृणाल जी, मृणाल सर, आप बताओ, हम लोग बचपन में जब स्पोर्ट्स किया, मेंटल ट्रेनिंग क्या है वो कभी सुना नहीं है। जब डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हुआ तब भी पता नहीं है। जब हम लोग को नेशनल टीम मिला है तब भी पता नहीं है। जब हम लोग वर्ल्ड कप या टूर्नामेंट के लिए जाने वाले थे, 1 महीना पहले कहां से एक लेडी आया और लेडी बोल रहा है, आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, यू नो व्हाट इज साइकोलॉजिस्ट। तो फिर किसी ने बोला, क्या हम लोग मेंटल का, हम लोगों का बीमारी है क्या साइकोलॉजिस्ट क्यों चाहिए? हम लोग इतना कुछ मेडल मिला विदाउट साइकोलॉजिस्ट, कहां से साइकोलॉजिस्ट आ गए? तो वो उस परफॉर्मर को बोलना था, कुणाल जी आप बोलिए सर, कि अगर नेशनल टीम वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है, उसका 4 दिन पहले कोई अगर साइकोलॉजिस्ट आके बात करेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। साइकोलॉजी अगर चाहिए तो ग्रास रूट से चाहिए। क्योंकि जैसे एक स्पोर्ट्समैन जो अगर फुटबॉल प्लेयर है, उसको कोई नहीं सिखाता है कि तुम एक पैर में बॉल मारो। पहला दिन से ही बोलते हैं कि दोनों पैर में आपको पैरेलल होना पड़ेगा। अगर फुटबॉल प्लेयर होगा, उसको पहले से ही सिखाया जाता है थ्रो कैसे किया जाए। अगर फुटबॉल प्लेयर होगा तो उसको हेड देना सिखाते हैं, मतलब एक कंप्लीट फुटबॉल प्लेयर बनाते हैं ना। तो वैसे ही आज का जो इंडियन स्पोर्ट्स है या वर्ल्ड का जगह पे आप कंपेयर करें, आज भी इंडियन स्पोर्ट्स ड्यू टू बहुत पीछे है। रीजन है स्पोर्ट्स साइंस। अगर आप देखिएगा, इंडियन स्पोर्ट्स साइंस में अभी भी बहुत पीछे है। आप कंपेयर टू यूएस, कंपेयर टू जर्मनी, कंपेयर टू चाइना, आप कंपेयर करके इवन कंपेयर टू जापान ऑल्सो, जापान, चाइना, यूएस और जर्मनी, अगर आप देखेंगे स्पोर्ट्स साइंस इंडिया का, बोलते हैं इंडिया से 50 साल वो लोग आगे हैं। मतलब है उन लोगों का जब टीम जाता है, साइकोलॉजिस्ट 2 साइकोलॉजिस्ट जाता है एक एक टीम का साथ। वाई? क्योंकि उन लोग मानते हैं साइकोलॉजिस्ट ही एक आदमी होता है जो लास्ट मोमेंट प्लेयर का मेंटल स्टेट को हेल्प कर रहा है, जहां पे शायद 3-4 कोच का जरूरत नहीं है, ये कोच ही काफी है। बोलने का मतलब है, अगर ग्रास रूट से वही बच्चा को ट्रेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेंटल टफनेस इज द मेन इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि अगर मैं आपको पूछता हूं सिंपल एग्जांपल, तब आपको पता लग जाएगा। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, बचपन से हम लोग पढ़े हैं। तो अगर सिंपल सवाल है, शाहजहां ने कितना बार बनाया था ताजमहल? क्या आंसर देंगे इंद्रनील? एक बार बनाया था सर। एक बार बनाया था, कॉमन आंसर है। लेकिन अगर थोड़ा मेटाफोरिक वे में देखें, शाहजहां फिजिकली ताजमहल बनाने से पहले कहां पे बनाया था? मन पे बनाया था, मन में स्केच किया था। मतलब हर चीज कहां पे बनता है? फास्ट मन में बनता है। उसका बाद फिजिकल क्रिएशन होता है। हर क्रिएशन का मिनिमम 5 to 10 टाइम्स होता है। ज्यादा क्रिएशन होता है मन में, उसका बाद फिजिकल क्रिएशन है। बोलने का मतलब है, फिजिकली कुछ नहीं बन सकता अगर वो मन में पिक्चर नहीं है। और मन का पिक्चर बनाना है, वो भी एक आर्ट होता है। वो भी एक आर्ट होता है। जैसे मटका जो बनाता है, वो हाथ से घुमा घुमा के बनाता, उसको पहले मन में एक पिक्चर बनाना पड़ता है। जो लोग दुर्गा माँ का मूर्ति बनाते हैं, वो कोई भी मतलब वर्शिप करने के लिए वो पहले मन में स्केच करता है, कोई पिक्चर बनाता है, तब जाके वो स्केच होता है। बोलने का मतलब है, अगर मन को पहले से बचपन से उसको समझा नहीं जाएगा कि आप बड़ा प्लेयर बनोगे, तो मन में बड़ा प्लेयर सोचो, मन में डिसिप्लिन बनो, मन में सक्सेसफुल जैसा सोचो। ये मन क्या है, वो आज भी इंडियन स्पोर्ट्स में कमती है। तो मेरा राय है, अगर अपॉर्चुनिटी है तो ग्रास रूट से मेंटल ट्रेनिंग किया जाए, सो दैट कंपटीशन का एक दिन पहले कोई बाहर से कोई लेडी या बाहर से कोई जेंटलमैन आके मेंटल ट्रेनिंग बोलेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसका असर भी नहीं पड़ेगा। अगर 100% इंडियन स्पोर्ट्स को ऊपर लेना है तो ग्रास रूट से मेंटल ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, जो मेंटल ट्रेनिंग एक्चुअली फादर मदर देते हैं बचपन में। क्योंकि एक फादर मदर ही बच्चा का सबसे बड़ा मेंटल ट्रेनर है, क्योंकि वो कोई ट्रेनिंग किताब पढ़ने का जरूरत नहीं होता। और हम लोग देखे भी है, फादर मदर छोड़ के और एक ट्रेनर होता है जो कोच होते हैं। लेकिन आज की डेट में सब कुछ स्पेशलाइज्ड है। आपको पता है, ये एक जमाना था जहाँ पे
एक डॉक्टर सब रोग का चिकित्सा करता था, याद है ना? हम लोग देखे ना बचपन में, एक डॉक्टर है वो सब रोग का चिकित्सा कर रहा है, वो हाथ का भी कर रहा है, पैर का भी कर रहा है। लेकिन आज देखिए, कोई राइट पैर कर रहा है तो लेफ्ट पैर का कर रहा है, कोई राइट कान को कर रहा है तो लेफ्ट कान का कर रहा है। मतलब टुडेज वर्ल्ड इज वेरी स्पेशलाइज्ड एंड वेरी स्पेसिफिक। और यही स्पेसिफिकेशन में अगर ग्रो करना है, वी शुड अपॉइंट अ मेंटल टफनेस कोच फ्रॉम द ग्रेसरूट, मस्ट इन एवरी स्पोर्ट्स, एवरी स्कूल में ये होना चाहिए। Well, sir, I certainly hope that your advices will be seen to, and in the coming years, we will see such changes, such drastic changes in all sports in the grassroots level in our country. So, sir, moving on, हम अपने कार्यक्रम के आज के वेबिनार के ऑलमोस्ट अंत के तरफ आ चुके हैं। तो आज आज हम लोगों का जो सिचुएशन है, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में, तो वो सिचुएशन बहुत ही अलग है। हम लोगों ने अपने जन्म से आज तक कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है, ऐसा कुछ ऐसे एक सिचुएशन में हम रहे नहीं हैं, और सब आज मतलब श्योर नहीं है कि क्या करे। स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन, जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो खेल नहीं पा रहे हैं, जो स्पोर्ट्स लवर्स है वो कुछ स्पोर्ट्स देख नहीं पा रहा है। तो आपको एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, एज अ टफनेस ट्रेनर, आपको क्या लगता है कि आप लोगों का इस टाइम पे क्या रोल है, या फिर as far as sports persons are concerned, do you think this is the time they should be looking into these kinds of things because they are having ample free time? हाँ इंद्रनील, ये जो सिचुएशन है ये रियली चैलेंजिंग सिचुएशन है, और इसे रिसर्च यही बोलता है, अगर आपको ग्रो करना है चैलेंज में ही ग्रो करना है। और ये जो चैलेंज है ये अनप्रिडिक्टेबल चैलेंज है, वर्ल्ड में कोई भी नहीं सोचा था, इतना बड़े बड़े जो शक्ति है कोई भी जो सोचा नहीं था, आज वो हुआ है। लेट्स सी व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग क्या सोचते थे, डरते थे, और वर्ल्ड में बड़े बड़े कंट्री किसमें इन्वेस्ट करते थे? प्रतिरक्षा में। आप मेडिकल बजट देखिए और प्रतिरक्षा बजट देखिए, हर कंट्री का प्रतिरक्षा बजट बहुत ज्यादा है और मेडिकल बजट बहुत कम है। बोलने का मतलब है, ये इतना छोटा सा एक नन्ना सा, मतलब जिसका कोई साइज नहीं है, जिसको सिंपल आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा एक छोटा सा चीज जो पूरा वर्ल्ड को तबाह करके रख दिया। मतलब ये हम लोग लर्न कर सकते हैं, चीज जितना भी छोटा हो लेकिन उसका पावर बहुत बढ़ सकता है। बोलने का मतलब है, ये जो लॉकडाउन टाइम है, मैं ये मान के चलता हूं, ये लॉकडाउन टाइम जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इसमें हर पर्सन को, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए जनरल पर्सन, एज ए जो भी घर में है, हम लोगों का मल्टीप्लाई बाई 3 मोड में रहना है। मल्टीप्लाई बाई 3 मोड मतलब, नॉर्मली अगर कोई 2 घंटा प्रैक्टिस करता था, अभी मल्टीप्लाई बाई 3 करना है, मतलब 6 घंटा करना चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा कैसे 6 घंटा बाहर में करेगा? घर में ही करना पड़ेगा, क्योंकि टफ टाइम है। टफ टाइम में 90% प्लेयर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। टफ टाइम में 90% प्लेयर वो स्नूज मूड में रहते हैं। स्नूज मूड मोबाइल में होता है ना, अलार्म बजते हैं, हम लोग दबा देते हैं, चुप हो जाओ, तो वो स्नूज मोड में चले जाते हैं, तो प्रैक्टिस कम हो जाता है। तो ये सिचुएशन पे ग्रो करने का सबसे आसान है, ये सीक्रेट में बता रहा हूँ, जो भी आज के ओलंपिक ट्रायल के लिए रेडी हो रहा है उनका सीक्रेट बता रहा हूँ, एकदम बहुत सीक्रेट है, क्योंकि उन लोगों का मेरा राय है मल्टीप्लाई बाई 3 कर लो। सवाल पूछेंगे क्यों? क्योंकि अभी आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है। तो अगर आप फिजिकल वर्कआउट कम कर दोगे तो आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, आपका मसल वीक हो जाएगा। आप घर में भी अपना मोबिलिटी कर सकते हो, आप घर में भी अपना वर्कआउट कर सकते हो। जैसे आपको पता होना चाहिए, बैंगलोर में इंडियन हॉकी टीम थ्रू आउट द 3 टाइम प्रैक्टिस कर रहा है आज की डेट, और बैंगलोर कैंप पूरा सील किया हुआ है, बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता। अगर खाना भी आएगा वो भी सुपर डुपर चेक करके अंदर आ रहा है। मतलब हॉकी दोनों टीम जो लोग ओलंपिक क्वालिफाई कर चुके हैं, बोथ टीम आर प्रैक्टिसिंग 3 टाइम्स इन बैंगलोर। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि मैं उन लोगों का साथ साइड बाय साइड पर्सनली कम्युनिकेट कर रहा हूं। बोलने का मतलब है, अभी हर किसी को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, एक्स्ट्रा सब कुछ। इमेजिन कीजिए, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 दिन पहले, मतलब ये कोरोना वायरस का 2 दिन पहले, कोई ऐसा है जो जूम का बारे में पता था? नोबडी। कोई ऐसा है जो सोच सकता था ऑनलाइन क्लास होगा? नोबडी। कोई ऐसा है जो सोच सकता था घर में बैठ के सब कुछ करेगा? नोबडी। लेकिन व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, कि घर में बैठ के भी अच्छा कुछ कर सकते, घर में बैठ के भी कुछ आगे कर सकते।
जैसे जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सोचा मेरा इतना सारा क्लाइंट है, और सबसे बड़ी बात है, क्लाइंट का बात छोड़ दीजिए, इस भारतवर्ष और लाइक एशियन कंट्री में जो भी है, जिन लोग अभी मेंटली वीक हो जाएंगे, तो उन लोगों का पास कौन रहेगा? गवर्नमेंट का जो सोर्स है वो लिमिटेड है, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, 130 करोड़ का आबादी है, कैसे किसको हेल्प करेंगे? तो मैंने सोचा मैं अपना कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करता हूं, इसीलिए मैंने सोशल मीडिया में, फेसबुक में सुबह 1 घंटा, शाम में 1 घंटा एवरी डे ऑनलाइन शुरू कर दिया था। डे 1 मतलब 18 मार्च से लेके आज तक मैंने एक भी सेशन मिस नहीं किया। दिन में 2 बार मैं सबको हेल्प करता हूं। मेरा काम है उसका मेंटल स्टेट ड्रॉप नहीं होना चाहिए। उसका फीडबैक मैं बताना चाहूंगा, 90% स्टूडेंट ग्रोइंग जस्ट लाइक ए सुपरसोनिक स्पीड, क्योंकि 90% घर में देखिए सबका नींद चला, मतलब नींद बढ़ गया है। अभी सब लोग सुबह 9 बजे नींद से खुल रहा है, कोई कोई 10 बजे, क्योंकि लॉकडाउन है, घर से निकलना नहीं है। 1:30 2 बजे तक मोबाइल यूज कर रहा है। और मेरा जितना सारा स्टूडेंट है, क्या सो डिसिप्लिन, वो लोग हर दिन सुबह 5 बजे उठते हैं, क्योंकि 5:30 बजे से मेरा सेशन है। और हर दिन मैं वर्कआउट देता हूं, शाम में फिर 5:30 बजे वही वर्कआउट को उन लोग रिपोर्ट देना है। ऐसे करके नियर अबाउट 4,500 से 5,000 स्टूडेंट है मेरा, जो लोग मेरा साथ रोज कम्युनिकेट करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि इससे मदर फादर और बच्चा का रिलेशनशिप भी अच्छा हुआ है। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि ये जो सिचुएशन है ये हम लोग के लिए अच्छा है, लेकिन ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये सिचुएशन से डरना नहीं है, ये सिचुएशंस को आगे बढ़ने के लिए अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। और वो बाहर से कोई नहीं कर सकता जब तक ना हम लोग अपना रिस्पेक्ट हम लोग दें। तो इसके लिए मतलब है खुद को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुद को डेवलप करने के लिए बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, और ऑनेस्टी का पास कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि जो ऑनेस्ट है उसका जीत होगा ही होगा। वेल सर, हम आशा करते हैं कि जितने जल्दी हो सके इस सिचुएशन से हम बाहर निकले, और जो भी इस सिचुएशन के अंदर हम सीखे हैं उसको जल्द से जल्द अपने प्रोफेशनल फील्ड्स में अप्लाई करें। Sir, before I let you go, I would like to ask you one final question, and that is definitely related to our company. Your association with Ideas Unlimited Sports Management Group does not start through this webinar. You have been associated with us for a long time. So, sir, if you could give us some feedback on our company. मुझे सबसे अच्छा लगता है इस कंपनी का जो ओवरऑल इंचार्ज है, आपको पता है, संजय दा। संजय दा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और जब से संजय दा ने मुझे ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, मैंने इमीडिएटली कुछ नहीं सोचा, मैंने यस बोला। क्योंकि यस बोला मतलब, जैसे आज की डेट में देखिए लाइक माइंडेड पीपल के साथ कनेक्ट होते हैं। तो मैंने एक बात मैंने सुना था, और वो बात मैं मानती हूँ आज की डेट में। वैसे आदमी जब भी मिलता है मैं उनको सल्यूट करता हूँ और मेरा गले लगा लेता हूँ। वो आइडिया है, ऑलवेज रिमेंबर, ऑर्डिनरी पीपल टॉक अबाउट अदर्स, एवरेज पीपल टॉक अबाउट थिंग्स, एंड ग्रेट पीपल टॉक अबाउट आइडियाज। बोलने का मतलब है, जो लोग एवरेज पीपल है वो दूसरे के बारे में सोचते हैं, जो लोग आम आदमी है वो सामान के बारे में सोचते हैं, और जो लोग ग्रेट पीपल है वो आइडिया के बारे में सोचते हैं। तो ये जो कंपनी है ये आइडिया ड्रिवन कंपनी है, ये कोई आदमी ड्रिवन नहीं है, ये कोई सामान मिलने वाला ड्रिवन नहीं है कि एक टी शर्ट मिल जाएगा या एक फुटबॉल मिल जाएगा या कोई पॉलिटिकल एक एसोसिएशन हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स थिंकिंग इन ए ग्लोबल वे में, वर्ल्ड वाइड इंडियन स्पोर्ट्स को कैसे और ऊपर ले जाए। तो ये जो आइडिया मेकिंग कोई भी होता है तो मैं उसको गले लगा लेता हूं, क्योंकि आइडिया पीपल एक साथ रहेगा तभी जाके कंट्री एक दिन सुपर चैंपियन बन सकता है। और ये कंपनी वैसे ही है, और इस कंपनी के साथ मेरा एसोसिएशन, मुझे भी सौभाग्य है इस टाइप ऑफ कंपनी के साथ एसोसिएट होना। Thank you so much for your kind words, sir. बहुत बहुत धन्यवाद. So with that, we have come to the end of our session today. I once again take this opportunity to thank our esteemed guest, Dr. Mrinal Chakraborty. Thank you so much, sir. It was a pleasure talking to you. Thank you so much for your time. A big thank you to all our viewers. You can watch us on Pink TV India on YouTube. We will be back very soon. Till then, take care and stay safe, everyone. Goodbye. Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir.